कुछ के बारे में हमने उस दिन डिस्कस किया था। नहीं कर सुंदर सुंदर वन साइड कुंदर आ साइड कुंदर ಇಲ್ಲಿ ನೀ ಏನ್ ರಗೋಚ್ಬೇಕು ನೀನು ओके तो एनी ऑफ यू बताइए कौन-कौन से टाइप के सॉल्यूशन पढ़े थे उस दिन? कुछ टाइप के मेजर सॉल्यूशंस पढ़े थे हमने कि अगर उसके अंदर सेल रखेंगे तो कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक आइसोटोनिक Right. We have discussed about three types of solutions: hypertonic, hypotonic, and isotonic. जिसमें हमने ये देखा था कि isotonic में since the concentration is same, तो water ना अंदर जाएगा ना बाहर आएगा, there is no osmosis. Hypertonic के अंदर शुगर ज्यादा थी यानी कि पानी कम, तो जब पानी बाहर कम है अंदर ज्यादा है तो डेफिनेटली वो अंदर से बाहर आएगा। और अगर आपका हाइपोटोनिक है यानी कि बाहर शुगर कम यानी कि पानी ज्यादा, अगर बाहर पानी ज्यादा है और अंदर कम है तो पानी अंदर जाएगा। अब इन टर्म्स के बाद वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कशन किया था कि उसके क्या स्ट्रक्चर, फंक्शन, नेचर, इट इज मेड अप ऑफ। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ डैश, फिल इन द ब्लैंक। cellulose is made up of cellulose. Okay, it is non-living in nature. एक मिनट, लेकिन आप लोग असाइनमेंट सबमिट नहीं कर रहे हो। Again, I am telling you, if you want submit, you know, I am also uploading notes there. I am giving the assignments. Assignment submit नहीं करोगे, मैं आपको उसमें से हटा दूँगी क्लास में। You will ask some other friends for the assignments, for the notes. आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी तो अपने असाइनमेंट सबमिट करिए। एक मैंने क्वेश्चन दिया था सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के अंदर डिफरेंसेस लिखने थे, जिसमें मेजर डिफरेंसेस आप क्या लिख सकते हो? सपोज आई कैन से पहला डिफरेंस क्या हो सकता है? हर्षिता, एनी वन डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन? अनम्यूट योरसेल्फ। मैम वन डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, बताओ हर्षिता। मैम सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। Okay, and cell membrane, cell wall is present in plant cells, and cell membrane is present in both cell wall in plant cell as well as in animal cells. Putra, any other difference? Ma'am, cell wall is made up of dead cells and cell membrane is made up of living cells. Cell membrane is made up of living cells, while the cell wall is made up of cellulose, which are Non-living. non-living cells. Okay, any other difference? Chinmay? yes miss Chinmay, any difference between cell wall and cell membrane? सेल वॉल फर्स्ट लेयर है मिस, वो प्लांट सेल का फर्स्ट लेयर होता है मिस, और एनिमल सेल के फर्स्ट लेयर। You can see it. Cell wall is the outermost layer in plant cells, while cell membrane is the outermost layer in animal cells. Next, okay, one more difference by Ramya. Any other difference? The cell membrane is an active part in cell, ma'am. Membrane is? Active part means Shakti. Active part. ठीक है, तुमने active part तो पढ़ लिया, चलो कोई बात नहीं। Abhigna, any other difference between cell membrane and cell wall? Cell membrane provides a flexible shape to the cell. Cell wall provides a particular shape to the cell, right, in plant cells. While cell membrane, you can write down, cell wall is very thick, it is tough, thick and provide a shape, whereas cell membrane is very much elastic, it is delicate. You can say cell membrane. मैम सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। Cell wall is made up of cellulose and cell membrane is made up of proteins and lipids. Lipids and protein. Ma'am, cell wall is permeable and cell membrane is selectively permeable. Cell wall is permeable whereas cell membrane is selectively permeable. तो यानी कि यहाँ तक का सब कुछ क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। Ma'am, cell wall. Okay. Cell membrane is selective. Mute your mics. Now the next thing is that we were discussing, एक छोटा सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। ज़्यादा Ma'am, video pause, ma'am. मैम ऑडियो भी ठीक नहीं आ रहा है मिस।
हाँ मिस चेक हो रहा है मिस। यस मिस। बेटा क्लियर है? बताओ जल्दी से, कोई भी अनम्यूट करके बताओ। No, miss. No, ma'am. Clear है miss. It's not clear ma'am. Fine. Not clear miss. Not clear. Now there is one very small topic which is plasmolysis. उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है? व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस? PLASMO, प्लाज्मो LYSIS। प्लाज्मोलिसिस के अंदर क्या है? मान लो मैंने एक प्लांट सेल को, प्लांट सेल यानी कि इट मस्ट कंटेन अ सेल वॉल, मैंने एक प्लांट सेल ली और मैंने उसे एक बीकर में डाला। ये मेरा बीकर है, इसमें मैंने एक प्लांट सेल को डाला है जिसकी ये सेल मेम्ब्रेन है और ये इसकी सेल वॉल है। You are having a cell membrane and a cell wall in this. अब इसके बाद इसको मैंने एक ऐसे सॉल्यूशन में रखा which is a hypertonic solution। जो क्या है? एक hypertonic solution है। जो बाहर का सॉल्यूशन है it is hypertonic। तो ऐसे में क्या होगा? आई कैन से सिंस इट इज हाइपर यानी कि ज्यादा है, इट मींस बाहर जो भी शुगर सॉल्ट जो भी है तो वो शुगर बाहर ज्यादा है क्योंकि ये हाइपर है, तो यानी कि पानी बाहर कम है। यानी कि आई कैन से द वाटर आउटसाइड इज लेस एंड द वाटर इनसाइड इज मोर। So what will happen in this case? The water molecules will move। जो पानी के molecules हैं वो move करेंगे अंदर से बाहर। When it will बाहर outside, osmosis हुआ, molecules बाहर आ गए। अब देखो समझो इसमें हो क्या रहा है। मैंने आपको उस दिन बताई थी एनिमल सेल के बारे में, हमने उस दिन डिस्कस किया था। अभी ये प्लांट सेल है। अब इसमें क्या होगा? जब अंदर का सारा पानी बाहर आता जाएगा तो धीरे धीरे करके इट विल स्टार्ट श्रिंकिंग। उस दिन जो हमने पढ़ा था फ्लैट होती जाएगी, फ्लैशेट होती जाएगी, अंदर का सारा पानी बाहर निकालती जा रही हो, इट मींस इट विल बिकम फ्लैशेट, ये बहुत पतली हो जाएगी। अब ऐसे केस में क्या होगा? क्योंकि ये एक प्लांट सेल है तो हमें पता है कि ये जो बाहर की सेल वॉल है ये तो बहुत हार्ड है, इसकी शेप चेंज नहीं होती है। तो कुछ ये ऐसा होगा कि सेल वॉल तो मेरी जैसी है वैसे की वैसी ही रहेगी क्योंकि सेल वॉल कभी भी पतली नहीं हो सकती बिकॉज सेल वॉल इज मेड अप ऑफ हार्ड मटेरियल सेल्यूलोज, वो वैसे की वैसी रहेगी। अब लेकिन जो अंदर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बड़ी ही डेलिकेट है तो इट विल स्टार्ट श्रिंकिंग। ये शेप बदल सकती है अपनी, ये बहुत इलास्टिक है तो ये धीरे धीरे क्या करेगी? श्रिंक होती चली जाएगी। ओके, मान लो ये बिल्कुल श्रिंक हो चुकी है। मेरी अंदर की जो सेल मेम्ब्रेन थी या मेरी अंदर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो पहले पूरे में थी, अब जैसे जैसे पानी बाहर गया ये बिल्कुल श्रिंक हो गई। और ऐसे में क्या होता है? जब सारा पानी अगर सेल के अंदर से बाहर आ जाएगा, अगर अंदर पानी बहुत कम बचा है, कब तक पानी, हमें पता है पानी कब तक बाहर आएगा? जब तक बाहर का पानी और अंदर का पानी बराबर ना हो जाए। तो ऐसे केसेस में क्या होता है? ना हो जाए सोल्यूशन होता है तो ऐसे में जब अंदर का सारा पानी ऑलमोस्ट बाहर निकल आता है, बहुत सारा सेल, जैसे हमारी बॉडी में से अगर ज्यादा पानी निकलता है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसी तरह से जब सेल में से काफी सारा पानी बाहर आ गया तो धीरे धीरे करके इतनी श्रिंक हो जाती है कि हमारी सेल डेड हो जाती है। सेल मर गई, सेल इज डेड नाउ। तो ऐसी जो डेड सेल्स होती हैं इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं। ये नहीं है सेल्स डेड हो गई, हम कहते हैं सेल जो थी वो प्लाज्मोलाइज्ड हो गई। प्लाज्मोलाइज्ड, PLASMOLYSED, प्लाज्मोलाइज्ड।
और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस. Okay, now let me repeat it. What happens if I want to define what is, अगर क्वेश्चन पूछूं when a cell becomes plasmolized, तो आप कहोगे कि when we put a cell, plant cell into a hypertonic solution, the water from the inside moves outside, and when a lot of water comes outside, the plasma membrane shrinks and the cell becomes dead or plasmolized. या अगर पूछूं व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस, तो आप कहोगे कि प्लाज्मोलिसिस इज अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है इन विच जिसके अंदर वी प्लेस अ प्लांट सेल इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. जब हम एक किसी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, सो दैट ड्यू टू विच ऑल द वाटर फ्रॉम द सेल विल कम आउट एंड द सेल विल बिकम so dried up. सेल इतनी ड्राई हो गई that it will lead to the death of the cell, जिससे कि सेल हमारी खत्म हो गई because of the shrinkage of plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतनी सिकुड़ गई, इतनी श्रिंक हो गई, सारा पानी बाहर आ गया और इस पूरे प्रोसेस को हमने प्लाज्मोलिसिस कहा. तो क्योंकि ये सेल वॉल के ऊपर बेस था, दोनों के बीच में डिफरेंस दिख रहा है, ये सारा हिस्सा खाली हो चुका है क्योंकि ये सेल वॉल थी, ये सेल मेम्ब्रेन पहले तो बिल्कुल टच में थी, अब बिल्कुल सिकुड़ गई, तो मोस्टली हिस्सा खाली हो गया, अंदर का हिस्सा भी खाली है क्योंकि पानी बाहर आ चुका है, सेल बिल्कुल पतली हो चुकी है एंड इट विल बिकम प्लाज्मोलाइज्ड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस. नाउ आफ्टर दैट there is one, after this we have completed with cell membrane and we have completed with cell wall. और साथ में तीन मेजर चीजें जो तीन टाइप के सॉल्यूशन थे जिनके ऊपर ये चीजें बात हो रही थी. एंड वी हैव कंप्लीटेड डिफ्यूजन, वी हैव कंप्लीटेड ऑस्मोसिस. नाउ कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल. हमने इस सारा सेल के चार कंपोनेंट हैं. सेल मेम्ब्रेन प्लांट एनिमल दोनों में है, न्यूक्लियस सेल वॉल, एनिमल दोनों में है, साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्मा, प्लाज्म, चौथा केवल प्लांट सेल में विच इज सेल वॉल, जिसमें से हम सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये दोनों डिस्कस कर चुके हैं. तीसरा टॉपिक दैट वी विल डिस्कस इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के बारे में आप लोग पहले 8th में पढ़ चुके हो, यू रिमेम्बर इट वेरी वेल. ठीक है, न्यूक्लियस बहुत ढंग से पढ़ना है. तो एक बार अगर हम न्यूक्लियस, जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ कि न्यूक्लियस पहले हम हर चीज को तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, नेचर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. सो व्हाट इज द नेचर, अगर मैं नेचर पूछूं इसका, तो इट इज अ सर्किल, इट इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन spherical structure present in both plant and animal cell. Present in plant and animal cell, दोनों में ये present है. ठीक है. In animal cell it is centrally located. हमें पता है कि जो animal cell होती है उसके कहीं बीच में हमें ये न्यूक्लियस देखने को मिलता है. तो इन दी एनिमल सेल में इट इज सेंट्रली, सेंटर में ऑलमोस्ट सेंट्रली लोकेटेड. जबकि प्लांट सेल में, क्योंकि हमें पता है जो प्लांट सेल होती है उस प्लांट सेल के अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, इसकी वजह से जो न्यूक्लियस है इट इज शिफ्टेड टू अ कॉर्नर, साइड, shifted to the corner of the cell, you can say. So in animal cell it is centrally located, while in plant cell the nucleus is shifted to the corner of the cell. Why? Due to the presence of a big vacuole. Plant cell में nucleus is shifted towards the corner of cell. Why? Due to the presence of a big vacuole. क्योंकि एक बहुत बड़ा वैक्यूल है इसलिए ये शिफ्ट हो जाएगा एक कॉर्नर के अंदर एक प्लांट सेल में. जबकि एक एनिमल सेल में इट इज मोस्टली सेंट्रली लोकेटेड, आपको बीच में देखने को मिलता है. So this is about the nature of nucleus. Now if we talk about the structure of the nucleus, तो न्यूक्लियस का डायग्राम इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट. न्यूक्लियस का डायग्राम बनाना आपको अच्छे से आना चाहिए.
if you see the diagram of the nucleus स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले न्यूक्लियस के बाहर कुछ ऐसे मेम्ब्रेन है। एक पहले नॉर्मल सर्कल बना लो, अगर याद हो तो मैंने 8th में ऐसे सिखाया था डायग्राम। एक सर्कल बना लो नॉर्मल डॉटेड, और फिर ऐसे इसको डबल मेम्ब्रेन बीच बीच में जगह छोड़ के। यस, नाउ ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है, क्योंकि ये सबसे बाहर है तो हम इसे आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे। किसी की भी बाउंड्री बायोलॉजी में मेम्ब्रेन, चाहे सेल की बाउंड्री हो तो सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की बाउंड्री है तो अगेन मेम्ब्रेन। सो दिस आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर इज आउटर मेम्ब्रेन। ये जो इसके अंदर वाला हिस्सा है इट इज इनर मेम्ब्रेन, अंदर वाली है तो इट इज इनर मेम्ब्रेन। और दोनों को मिलाकर वी कॉल न्यूक्लियर एनवलप। एक एनवलप कर रखा है इसने, घेर रखा है एनवलप की तरह इसको। तो दोनों को मिला के जो पूरी मोटी वाली डबल मेम्ब्रेन है, डबल यानी कि एक इनर और एक आउटर, दिस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियर एनवलप। NUCLEAR, nuclear envelope, ENVELOP, nuclear envelope, ठीक है। न्यूक्लियर एनवलप इज द आउटरमोस्ट, ये मोटी वाली लेयर। जो बीच में छेद हैं दैट इज अ कोर, और क्योंकि ये न्यूक्लियस के हैं तो इट इज नोन एज न्यूक्लियर कोर। ये जो बीच बीच में आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये जो हिस्से हैं these are nuclear core। ये तो बाहर का स्ट्रक्चर हुआ। अंदर के हिस्से में you will find three things। सबसे पहले तो जैसे सेल में साइटोप्लाज्म था लिक्विड भरा हुआ, वैसे ही इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, उसको क्योंकि वो न्यूक्लियोप्लाज्म, तो हमने सेल का था तो हमने साइटोप्लाज्म कहा था। ये न्यूक्लियस का है तो हम इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। सो इन द इनसाइड यू विल मेक डॉटेड हिस्सा व्हिच इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। यस, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अलावा और क्या होता है अंदर? न्यूक्लियोलस, करेक्ट। ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म फैला हुआ है, ये कहीं कहीं क्या होता है कि बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, मतलब ये बहुत सारा लिक्विड एक जगह कहीं कलेक्ट हो गया। अगर मान लो ये सारा लिक्विड इधर कनेक्ट हो गया, काफी सारा हिस्सा, ओके, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है बाहर की, कोई बाउंड्री नहीं बनानी है कि हमें पता चले कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस वो कोने में पड़ा है, नो बाउंड्री। सिंपल डॉट से पहले एक सर्कल बना लो डॉटेड डॉटेड, और यहाँ पे बहुत सारे डॉट पास पास में। And this structure is known as nucleolus. Nucleolus. Then there is one very important structure which is chromatin threads. इसके बीच में धागे जैसे पतले पतले structures हैं, जो आपको कुछ इस तरीके से मिक्स आपस में उलझे हुए intertwined दिखाई देंगे। क्रोमोसोम्स मैम, Chromatin materials. Chromatin thread. There is a difference. आपने 3 वर्ड्स बोले, क्रोमैटिड, क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिन मटेरियल, 3 या क्रोमैटिन थ्रेड, सब अलग अलग चीजें हैं। क्या डिफरेंस है वी विल डिस्कस। सबसे पहले ये जो पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागे जैसे, जो आपको नॉर्मल सेल में, अगर मैं भी अपनी बॉडी से एक सेल निकालूं और माइक्रोस्कोप में उसको देखूं तो मुझे ऐसे बहुत सारे धागे आपस में उलझे हुए दिखाई देंगे। उलझे हुए को बोलते हैं इंटरट्वाइंड। इंटर मतलब आपस में, ट्वाइंड मतलब उलझे हुए हैं। इंटर, INTER, twined, TWINED। These are intertwined, means सारे धागे एक दूसरे से उलझे हुए हैं। And these thread-like structures which are found inside this are known as chromatin thread, क्योंकि thread जैसे हैं, या फिर chromatin material, chromatin thread या chromatin material।
visible chromatin thread क्रोमैटिन थ्रेड या क्रोमैटिन मटेरियल, ये जो धागे हैं इन्हें हम क्रोमैटिन मटेरियल बोलते हैं या सिंपली क्रोमैटिन थ्रेड्स बोलते हैं। अब इतने के बाद अगर आपसे स्ट्रक्चर पूछा जाए, अगर ये डायग्राम आपको याद है तो यू कैन इजीली एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर विद द डायग्राम। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर क्या होगा कि न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय टू मेम्ब्रेन्स, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन, टुगेदर they form nuclear envelope. This is the first point कि वो nuclear envelope के बारे में आपने 2 लाइनें लिख दी। दूसरा पॉइंट क्या होगा, there are certain pores in the outer membrane known as nuclear pore. तीसरा हिस्सा, within the nucleus a liquid is filled known as nucleoplast. चौथा पॉइंट, a dense मतलब इकट्ठा नहीं, बहुत सारा DENSE dense. The dense part inside the nucleus is known as nucleolus. उसको हम nucleolus कहते हैं. And the thread-like structures which are found in the nucleus are known as chromatin threads या chromatin material. अब इतने के बाद अब हम बात करते हैं जो आपने आगे बात करी क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिड्स. What are those? इसको मैं रख कर रही हूँ, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाहती हूँ. I'm rubbing this. Now, अब जरा एक छोटा सा अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं न्यूक्लियस का, तो ये मेरा स्ट्रक्चर था जिसके बीच में बहुत सारे स्पेसेस थे जो न्यूक्लियर पोर थे. अब इसके अंदर जो आपने क्रोमैटिन थ्रेड देखे थे, सेल जब तक डिवाइड होने की कंडीशन में नहीं है, जरा सेल थ्योरी याद करो. सेल थ्योरी में एक पॉइंट था कि सेल डिवाइड होती है और उससे नई सेल्स बनती है. एक सेल डिवाइड होगी 2 में, तो जब तक ये सेल, ये जो नई वाली सेल बनी है, ये एकदम बनते ही तो डिवाइड होंगी नहीं दोबारा. ये नई वाली सेल्स पहले धीरे धीरे ग्रो करेंगी, बड़ी होंगी, और बड़े होने के बाद एक स्टेज आएगी जब ये डिवाइड हो जाएगी. ओके, जब ये अच्छे से मैच्योर हो जाएगी तो ये डिवाइड हो जाएगी बड़ा होने के बाद. जब तक सेल डिवाइड होने की कंडीशन में नहीं है, अभी देखो ग्रो कर रही है, अभी उसे डिवाइड नहीं होना है, जब तक ये डिवाइड नहीं होगी सेल, तब तक ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है या जो क्रोमैटिन थ्रेड्स हैं, आपको ये ऐसे ही बहुत सारे उलझे हुए दिखाई देंगे. तो इसके अंदर हमें क्रोमैटिन थ्रेड्स दिख रहे थे. ये थ्रेड्स हमें तब तक दिखेंगे जब तक सेल ग्रो कर रही है और डिवाइड नहीं होना चाहती है. अभी सेल नहीं डिवाइड हो रही. मैंने अपनी फिंगर की कोई सेल ब्लड निकाला, मैंने सेल को देखा और मुझे ऐसे क्रोमोसोम, ऐसे मटेरियल दिख रहा है एक साथ एंटेंगल्ड बिल्कुल, तो मेरे को समझ जाना है कि मेरी सेल अभी डिवाइड होने की कंडीशन में नहीं है, अभी वो ग्रो कर रही है. जैसे जैसे ये ग्रोथ खत्म होती जाएगी और ये क्रोमैटिन थ्रेड्स, और जैसे जैसे सेल तैयार है डिवाइड होने के लिए, तो जब मेरी बॉडी में मेरी सेल को पता चलता है कि नाउ आई एम रेडी फॉर द डिवीजन, मैं डिवाइड होने के लिए रेडी हूँ, ऐसे में क्या होता है, ये जो क्रोमैटिन थ्रेड्स हैं ये अलग अलग होना शुरू करते हैं. ओके, ये अलग अलग होना शुरू करेंगे और ये कुछ रॉड जैसे स्ट्रक्चर बना लेंगे, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर, सब एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे और न्यूक्लियस के अंदर आपको रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर दिखेंगे जो कुछ इस तरीके से हैं. ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? हाँ मिस. यस मिस. या मैम. मेरी सेल डिवाइड होने को तैयार है, इसने कहा भाई अब टाइम आ गया कि मुझे डिवाइड होना है, और इसके लिए ये अलग अलग स्ट्रक्चर रॉड शेप्ड हो गए. अब ये जो हर एक रॉड है इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिड. ड्रॉ करें. CROMATID. ओके, क्रोमैटिड. अब देखो, एक सेल हमेशा 2 में डिवाइड होती है. मेरी ये वाली सेल
पहले तो डिवाइड नहीं होना चाहती थी, तब इसके अंदर सारे क्रोमैटिन थ्रेड थे। अब इसने कहा मैं तैयार हूँ डिवाइड होने के लिए। जब इसने कहा मैं तैयार हूँ डिवाइड होने के लिए, तो ये रॉड लाइक क्रोमैटिड बन गए। पर इसने मुझसे अब क्या कहा, इसने कहा कि भाई मेरे को 2 सेल्स बनानी है, मेरे को एक थोड़ी बनानी है। आई नीड 2 सेल्स, मेरे को 2 सेल्स बनानी है। और जब मुझे 2 सेल बनानी है तो मुझे एक पूरा पेयर चाहिए, जिससे क्या हो, इसका एक हिस्सा मेरी एक सेल में जाए और दूसरा हिस्सा दूसरे में जाए, एक में जाए, दूसरा दूसरे में जाए, क्योंकि मेरी 2 सेल्स हैं और मेरी अगर 2 सेल्स बनेंगी तो आई कैन नॉट डिफरेंशिएट। मैं बायस नहीं होना चाहती, मुझे जो इस सेल में देना है मुझे सेम इस सेल में चाहिए। आप कुछ भी करो, बट आई वांट 1 कॉपी ऑफ ईच, राइट। मेरे को उसकी एक फोटोकॉपी करके दो, ताकि एक फोटोकॉपी इसके पास रहे, एक फोटोकॉपी इसके पास रहे। आई वांट फोटोकॉपीज ऑफ ऑल द क्रोमैटिड्स। अब ऐसे में मेरी सेल के अंदर एक और चीज हुई, क्या हुआ, उसने कहा ठीक है भाई डिवाइड तो होना ही है, नई सेल्स बनानी है वरना बॉडी खत्म हो जाएगी, यू कैन नॉट सर्वाइव। तो उसने कहा ठीक है, आई एम रेडी फॉर योर थिंग, मैं तैयार हूँ तुम्हारी शर्त मानने के लिए, आई विल मेक द फोटोस्टेट्स। ऐसे में क्या हुआ, मेरी हर एक क्रोमैटिड के एक फोटोकॉपी हो गई। यानी कि अब जो चीजें इस वाली में हैं वो सेम चीजें ये दूसरी फोटोकॉपी में हैं। कलर फोटोस्टेट कर दी मैंने, सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं पता चला ओरिजिनल कौन सी थी और फोटोस्टेट कौन सी है। अब ये जो 2 बन गई, ये वाला ले लो पहला वाला पेयर, ठीक है, ये 2 बन गए। अब इन दोनों को हमने एक नाम दिया। पहले एक को हमने केवल क्रोमैटिड बोला था, लेकिन अब क्योंकि इसके साथ इसका फोटोस्टेट भी है, तो नाउ वी विल कॉल देम एज सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब ये बहनें बन चुकी हैं दोनों, ठीक है, क्लियर। कितने हो गए ये सिस्टर क्रोमैटिड्स। अगर मैं पूरे की बात करूंगी एक साथ, तो आई विल कॉल दीस टू एज सिस्टर क्रोमैटिड्स। इसकी फोटोकॉपी ये वाली है तो ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स, इसकी फोटोकॉपी ये है तो ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स, इसकी फोटोकॉपी ये है सिस्टर क्रोमैटिड्स, इसकी फोटोकॉपी ये है तो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब इसके बाद क्या हुआ, जब ये ऐसे सिस्टर क्रोमैटिड्स बन गए, ये एक पॉइंट पे आकर जुड़ गए। कैसे जुड़े, ये बीच में एक सर्कल, ओके, ये मेरी पहली वाली जो ओरिजिनल थी और ये मेरी दूसरी वाली, ये मेरी दूसरी वाली जो कि फोटोकॉपी थी, ठीक है। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना, जहां ये जुड़ गए, बीच में एक सर्कल दिख रहा है जिसपे ये जुड़े हैं, ये रहा सेंटर में सर्कल। दिस सर्कल centromere, this circle is known as centromere, CENTROMERE। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स, 2 क्रोमैटिड जिनको हमने सिस्टर क्रोमैटिड बोला, और साथ में एक सेंट्रोमियर। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमोसोम। दिस इज अ क्रोमोसोम। दिस इज अ क्रोमोसोम। और हमारी बॉडी में ऐसे कितने पेयर मिलेंगे, 23 पेयर। दिस इज 23। तो दिस इज 1 पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है, 2 एक साथ। सो दिस इज 1 पेयर। अगर मैं ऐसे पूरे बोर्ड पे 23 बना दूं, सेम ऐसा स्ट्रक्चर, if I have 23 pair of chromosomes, so that is the total number present in my body. मेरी बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं। क्योंकि 23 पेयर है, तो अगर अलग अलग कर दूं तो 23 into 2 will be 46 क्रोमोसोम। 46 chromosome. 46. सिंगल 46, डबल 23। समझ में आया इतना? Yes, ma'am. Yes, miss. Yes, miss. Repeat this one. Yes, miss. Sorry, this is the nucleus having the nuclear membrane, जिसके अंदर 2 हिस्से हैं, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। दोनों को मिला के न्यूक्लियर एनवेलप, बीच में न्यूक्लियर कोर, बीच में न्यूक्लियोप्लाज्म, साइड में कहीं पर न्यूक्लियोलस
और बीच में क्रोमैटिन थ्रेड्स। क्रोमैटिन थ्रेड्स तब तक रहेंगे या क्रोमैटिन मटेरियल तब तक रहेगा when the cell is not ready to divide. When it is ready to divide, तो सारे धागे अलग अलग होने लगे और ये रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर बना लिया which is the chromatid. Now chromatid wants a photocopy क्योंकि मुझे 2 सेल में डिवाइड करना है, तो for this photocopy हमने एक और फोटोकॉपी करी बॉडी में उसकी एंड सिस्टर उन 2 सिस्टर क्रोमैटिड को एक जगह पे जोड़ दिया, उस जगह को हमने कहा सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर पे जब ये 2 आर्म्स जुड़ गए तो हमने इस पूरे हिस्से को एक क्रोमोसोम बोला। दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, miss. Yes, miss. इसके बाद चलो 2 मिनट में एक चीज और देख लेते हैं। ये जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, ओके, दिस न्यूक्लियोलस इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स। एक को मैं पूछूं व्हाट इज दिस न्यूक्लियोलस मेड अप ऑफ, तो इट इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स। एक को हम बोलते हैं आरएनए और एक को हम बोलते हैं प्रोटीन, ओके। और ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है दिस इज अगेन मेड अप ऑफ 2 थिंग्स। एक को अगेन सेम प्रोटीन और दूसरी चीज को हम बोलते हैं डीएनए। दिस इज आरएनए, दिस इज डीएनए। Now what you should know here is the full form of DNA and RNA. पहले RNA समझ लो, DNA समझ लो। RNA. R means ribo, R-I-B-O. N for nucleic, N-U-C-L-E-I-C. Ribonucleic and A for acid. So this nucleolus is made up of RNA and protein, which is ribonucleic acid and proteins. And DNA की full form बड़ी आसान है, पूरा ribonucleic Deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid. एसिड के आगे बस एक वर्ड लगाना है which is deoxy. Deoxyribonucleic acid is the full form of DNA. RNA is ribonucleic acid and क्योंकि इसमें D आ गया तो D से हमने एक वर्ड लगा दिया deoxy. So this is deoxyribonucleic acid. So out of these things it is made up. This is RNA and protein. This is DNA and protein. अब इसके बाद ये जो DNA आपको दिख रहा है ये बहुत लंबा पतला सा थ्रेड समझ लो, बहुत लंबी सी तार है। इसके अंदर ऐसा समझो जैसे मैंने एक माला पहनी है जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे से मोती हैं, बीड्स। तो अगर मेरा ये हार है सुंदर सा और इसके अंदर छोटे छोटे से बीड्स हैं, ये तो इस हर एक बीड को हम बोलते हैं जीन्स, G-E-N-E-S, जीन। एक का नाम जीन और बाकी सारे मिला के जीन्स। तो यानी लंबा सा थ्रेड है, अगर ये डीएनए है तो उसमें जो मैंने छोटे छोटे मोती डाले हैं वो एक जीन है। अब ये जो जीन्स हैं ये क्या डिसाइड करते हैं? ये डिसाइड करते हैं हमारे कैरेक्टर। मान लो ये जो जीन नंबर 1 है ये डिसाइड कर रहा है मेरी आंखों का कलर, इट इज ब्लैक। दूसरा मेरे बालों की लेंथ, ओके। तीसरा मेरा ईयर लोब, ये कनेक्टेड है या फ्री है? मेरा फ्री है, किसी ना किसी का कनेक्टेड भी होगा। फेस से ईयर लोब कनेक्टेड और कुछ में फ्री, एकदम अलग से। मेरा फ्री है, अपना अपना चेक करें। सो दिस इज योर जो चौथा बीट है, इट मस्ट बी टेलिंग यू अबाउट द योर हाइट, आपकी हाइट के बारे में डिसाइड कर रहा होगा। पांचवा जो होगा, इट मस्ट बी डिसाइडिंग अबाउट योर फिंगर्स। किसी किसी के हाथ में 6 फिंगर्स होती है, नंबर ऑफ फिंगर्स इन हैंड, ये 6 भी होती है। तो ये जो जीन्स है हर एक पर्टिकुलर जीन का फंक्शन है। तो दीज आर दी स्मॉल फंक्शनल यूनिट्स। किस चीज के फंक्शनल यूनिट्स है? हमारे डीएनए की।
डीएनए के अंदर ये छोटी छोटी फंक्शनल यूनिट है और हर एक जीन का एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे, टाइम ओवर होने वाला है। इसके आगे इसके फंक्शंस रह गए हैं, वो कल डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। असाइनमेंट आई अपलोड एंड रिमेनिंग वी विल कंटिन्यू टुमारो। ओके, Yeah, ma'am.